Hello students. So today we are going to solve the numericals of the chapter force and the laws of motion. These are the in-text questions, that is questions from your textbook only. And while watching this video, you have to keep in mind that how to write a numerical or how to present a numerical, because previously when I had given you assignment which was based on numericals only, I found that you were not writing in a proper way. Someone missed writing formula, someone missed mentioning the units, and if the units were mentioned, they were not mentioned in a proper way. Okay, so please pay attention that while solving a numerical, what are the things that you need to mention, like what you need to find, what is given, and then write the formula, then write calculation, and then finally write your answer along with the unit. Okay, so let's begin with the first numerical. So let's begin with the first question of the numerical. I mean the fifth question of your textbook. The question is: a truck starts from the rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 tons. Okay, so in this question, it is given that a truck starts from rest. So a truck starts from rest. This shows that its initial velocity is 0. So see here, initial velocity of the truck is 0 meter per second. Then how much distance it is traveling? It is traveling 400 meter in the given time interval of 20 seconds. Okay, so and mass of the truck is also given to you, that is 7 metric tons. 1 metric ton is equal to 1000 kg, so 7 metric tons is equal to 7000 kg. What you need to find? You need to find acceleration of the truck as well as the force that has been exerted or that has been acting on this truck. Okay, so see, now distance is given to you, time is given to you, whereas the initial velocity is given to you. You need to find acceleration. So the three equation, the equation for the uniform motion that you had studied in the previous chapter, that we are going to use more often in these questions, okay, while solving the numericals of this chapter. So the one of the equation that I had used over here is S is equal to ut plus half at square. Okay, now putting the values, like distance, it is given to you 400 meters, so 400 meter. U, initial velocity, is given to you 0. Time t is t as it is. No, it is, I think, given to you, time t is given to you 20 second. So I can write over here 20 second. Okay, then half a as it is. We don't know, we need to find the value of a, and t, that is 20 square. Okay, then 0 into t is 0, so this entire term reduced to 0. Half a t square 400. ठीक है, 400 400 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 1, 2 मल्टीप्लाई हुआ वहां पे तो 2. So acceleration is how much? It is 2 meter per second square. Now you are having mass of the truck, you are having acceleration of the truck. So the formula to find the force is what? It is F is equal to m into a, 7000 into 2, that is 14,000 Newton. Okay, so this is our first numerical. Then moving to the next numerical, that is question number 6. A stone of 1 kg. Okay, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. So mass of the stone is given to you 1 kg and its velocity is given to you 20 meter per second across the frozen surface of the lake and come to the rest after traveling a distance of 50 meter. ठीक है, that means it was thrown, so the initial velocity of the stone is given to you, how much it is? 20 meter per second. Whereas after traveling particular distance, that is the distance of 50 meter, it comes to rest. So its final velocity reduces to 0 meter per second. Okay, you need to find the force.
ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस. ये पत्थर जो है उसको किस पे फेंका गया, आइस सरफेस पे फेंका गया है. तो यू नीड टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज बीन अप्लाइड और दैट इज बीन एक्टिंग बिटवीन स्टोन एंड द आइस. तो अब आप देखिए फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास आपके पास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, इट इज हाउ मच, इट इज 1 kg, बट यू डोंट हैव एक्सीलरेशन. तो अब हमें क्या करना होगा, एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा. तो आप देखिए आपके पास u है, v है, s है. तो हम लगाएंगे वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास सॉल्व करेंगे, वैल्यूज मैंने रख दी है. सॉल्व करने के बाद देखिए a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू वी आर गेटिंग -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास मास है, मास ऑफ द स्टोन इज हाउ मच, 1 kg. सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू a. तो m1 इंटू -4 दैट इज -4 न्यूटन. ठीक है, तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है आइस पे, दैट इज -4 न्यूटन. Now moving to the next question, that is question number 7. Question number 7 क्या है, a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons. ओके, एक इंजन है जिसका मास कितना है 8000 kg. वो कितने वैगन्स को पुल कर रही है, मतलब कितने डब्बे को पुल कर रही है, 5 वैगन्स. ईच ऑफ 2000 kg, 5 वैगन्स को वो पुल कर रही है. द मास ऑफ 1 वैगन इज गिवन टू यू, हाउ मच, इट इज 2000 kg along a horizontal track. एक horizontal track है जिसपे कि 2000 kg का each wagon है और जिसको पुल कर रही है एक इंजन which is having the weight of mass of 8000 kg. If the engine exerts a force of 4000 Newton and the track offers a friction of 5000 Newton, then calculate द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. ठीक है, अब आप देखिए आपको पूछा गया है, पहला जो है मैं बता दूं, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. जब कोई चीज मूव कर रही है तो आपको पता है दैट सरफेस ऑल्सो अप्लाइज द फोर्स. ठीक है, तो जो सरफेस अप्लाई फोर्स करता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. तो यहां पर जो है ट्रेन इज मूविंग ऑन द ट्रैक, सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी provided by the track and its value is given to you. How much it is given? It is given to you 5000 Newton. ठीक है, and force exerted by the engine. engine कितना फोर्स अप्लाई करेगा, engine जो है वो आपको क्लियरली दिया गया है that it is exerting a force of 40,000 Newton on, okay, it is exerting 40,000 Newton. तो 40,000 न्यूटन ऑलरेडी आपको दिया है. सो 40,000 में से मैं 5,000 न्यूटन को क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी. सो हाउ मच नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज देयर, इट इज 35,000 न्यूटन. ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी, यू नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. हमें किसका फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. तो ट्रेन का हमने फोर्स फाइंड कर लिया कि कितना है. नाउ F इज इक्वल टू m इंटू a. So A is equal to F by M. So A is equal to F by M. 35,000 divided by M. That is mass of 5 wagons. ठीक है, ट्रेन कितना है, 5 डब्बों से बनी हुई है. तो 5 डब्बों से बनी हुई है तो 5 into 2000. So that is 10,000 और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, then third that you need to find is the force exerted by wagon 1 on wagon 2. Okay, so wagon 1 will have to exert force on all the 4 wagons next to it. ठीक है, फर्स्ट वैगन जो नेक्स्ट वैगन्स पे फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करना है. अब वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, कितना भी हो, टोटल 5 वैगन्स है. तो अगर किसी एक को लगाना पड़ रहा है तो वो चारों पे लगाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब मुझे फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए 2 चीजें चाहिए, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए. तो आपके पास मास जो है एक जो है बाकी के 4 पे लगा रहा है, तो 4 का मास हम कैलकुलेट करेंगे. तो एक का अगर 2000 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 8000 kg. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, हाउ मच इट इज
3.5 meter per second square. So 8,000 into 3.5, how much we are getting? 28,000 Newton. Okay, now moving to the next question, that is question number 8. So question number 8 is, sorry, question number 11, because 8, 9, 10 are they are like scientific reason question. Okay, so starting with the question number 11, it's so the question is, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in the opposite direction. दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास 1.5 kg है, दोनों का ही, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब कि अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन. ठीक है. Then the velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? समझ रहे इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि two objects are there, they are having the mass of 1.5 kg and they are moving with the 2.5 meter per second before collision. कोलिजन होने से पहले वो 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ठीक है. अब आपको ये फिर कोलिजन होने के बाद, कोलिजन से पहले की ये है कि भाई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और कोलिजन कैसे हुआ है कि उनको इकट्ठा बांध दिया गया है. जब इकट्ठा बांध दिया गया है तो दैट इज द नेक्स्ट केस. ठीक है. तो आपको ये बताना है कि जब उनको इकट्ठा बांध दिया गया और फिर वो मूव कर रहे हैं तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है. तो यहाँ पे केस आ रहा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. तो मोमेंटम हम बिफोर कोलिजन देखेंगे और फिर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, दैट मीन्स आफ्टर स्टिकिंग बोथ द ऑब्जेक्ट टुगेदर. ठीक है. तो इस तरीके से दो चीजें आती है. अब आप पहले तो ये चीज समझिए that both the objects are moving in the opposite direction. So first object is moving like this way. So next one, the other object is moving in this direction. Obviously, if we are considering their velocity, if one of the velocity, if for one object, if I'm considering the velocity as 2.5 meter per second, then the velocity of the other object will be considered with minus sign. ठीक है. Because both are the vector quantity, and to show this vector quantity we need to we are expressing this with the help of minus sign. Okay, and both are, since they are moving in the opposite direction, तो एक का अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे का ऑब्वियसली कितना होगा? नेगेटिव. तो देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन टुक प्लेस, जब दोनों ऑब्जेक्ट को हमने बांधा नहीं है तो उसके पहले का मोमेंटम क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2. तो देखिए m1v1 m2v2, v2 को मैंने क्या ले लिया है? निगेटिव ले लिया है. क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान में रखिएगा. ठीक है. तो क्या हो गया? जीरो हो गया. दोनों टर्म सेम है, माइनस की साइन आ गई तो जीरो. ठीक है. अब जब दोनों ऑब्जेक्ट को मैं टाई कर देती हूँ, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टुगेदर, समझ रहे हैं? दोनों ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे. अगर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते तो v1 और v2 दोनों की एक वेलोसिटी हम कंसिडर करते, बट हियर द ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टुगेदर, दैट मीन्स व्हेनेवर दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी. सो the velocity that I have considered after tying them is v. Okay, so v, since the objects stick together after the collision, hence momentum after the collision क्या हो जाएगा? m1 plus m2, दोनों का मास प्लस वो एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे क्योंकि दोनों को बांध दिया गया है, तो इंटू v. ठीक है. तो दोनों का 1.5 1.5 3v. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. ठीक है. मोमेंटम तो बिफोर कोलिजन का कितना था? 0, और आफ्टर टाइम मतलब आफ्टर इम्पैक्ट उसका कितना था? 3v आया. ठीक है. दोनों को वो किया तो v आपका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. So question number 13 is, see, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick as
so as to return it along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड. एक हॉकी बॉल है जिसका मास आपको दिया है 200 ग्राम, जो कि कितने 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको स्ट्रक किया गया, मतलब उसको मारा गया. सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल so as to return to its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल पाथ पे आए. और ओरिजिनल पाथ पे कितने स्पीड से आए? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आए. तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. ठीक है, तो आपको चेंज इन द मोमेंटम फाइंड करना है. चेंज इन द मोमेंटम ऑब्वियस सी बात है, पहले हॉकी बॉल थी जो कि मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फिर उसको स्ट्रक किया, उसको मारा हमने हॉकी से, और उस बॉल को हमने वापस से उसके ओरिजिनल पाथ पे भेजा. और जब वो ओरिजिनल पाथ पे मूव कर रही थी मारने के बाद, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई. और वो कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड. सिंपल सी बात है. अब आपको V1 दिया है और आपको V2 दिया है. V2 आपको -5 मीटर पर सेकेंड मैंने क्यों लिया? क्योंकि अब पहले वो ऐसे मूव कर रही थी, फिर उसको रिटर्न बैक किया है. जब हम रिटर्न बैक कर रहे हैं तो उसकी जो प्रीवियस वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी से अब उसका डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया है. मोशन उसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया है. इसीलिए वेलोसिटी V2 को मैंने क्या लिया है? नेगेटिव लिया है, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, रिटर्न वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में बताया भी है. और मास कितना दिया है? 0.2 kg. सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. यू नीड टू फाइंड द इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास इनटू इनिशियल velocity. So initial momentum of the hockey ball, mass is 0.2 into 10, so 2 kg meter per second. Final momentum of the hockey ball 0.2 into -5. As I told you, return velocity, it is returning on the path from where it has traveled. So direction has been, now the direction is the opposite, so taking minus sign. So this is giving you -1 kg meter per second. So change in the momentum. Change is what? Final minus initial. So final is -1 and minus initial, that is -2. Minus plus -3 kg meter per second. So this is the change in the momentum of the ball before and after collision. Okay. Now let's move to the next question. That is question number 14. Okay. Now in question number 14, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. ठीक है, तो आपको दिया गया है एक बुलेट है जो जिसका मास है 10 ग्राम. उसको क्या कहते हैं? इट इज बीन ट्रिगर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसे ट्रिगर किया गया है. ट्रिगर किया गया है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड. और कितने टाइम तक वो ट्रेवल करती है? इट ट्रेवल्स फॉर 0.03 seconds. Okay, so now you have to find the distance, that is S, that is been traveled by the bullet, and the bullet strikes to a wooden box which is stationary. So see, we need to find the acceleration, so we are using one of the equation of the uniform motion. V is equal to U plus AT. तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट जब हमने चलाई तो पहले वो उसको कुछ वेलोसिटी से ट्रिगर किया, और जब वो पेनिट्रेट हो जाती, जब वो बॉक्स को लग जाती, तो फिर वो वहां जाके रुक गई. जब वो रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए फाइनल वेलोसिटी की जगह पे मैंने क्या लिखा है? 0 मीटर. ओके, 0 सॉरी. और u उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 150 plus as it is, acceleration as it is, time is given to you 0.03. वैल्यू को पुट किया, ये प्लस में था, ये इधर गया तो माइनस में, फिर सिंपल मैक्स लगाया तो आपके देखिए एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन. फिर उसके बाद क्या पूछा है? नाउ इट इज बीन आस्क्ड दैट
फाइंड द सॉरी डिस्टेंस, अब हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस अगेन यूजिंग वन ऑफ द इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यू हमारे पास 150 है, मैंने डाल दिया, टी की वैल्यू डाल दी हाफ, ए जो आपका था -5000 और टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे रखी, सॉल्व किया, सो वी आर गेटिंग 2.25 मीटर. So this is the distance traveled by the bullet. Okay, now the next is we need to find the force that has been exerted. So force के लिए mass into acceleration, mass of the bullet is already given to you, it is given in 10 gram. And see, we always deal with the standard with the standard units. So standard unit for the mass is kg. So here we have converted 10 grams into kg and it is equal to 0.01 kg into -5000, so -50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट, ये 100 होगा, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना बचा 50, -50 न्यूटन. So this is the force exerted. Okay, now moving to the next question children, this 15th question. Okay, now 15th question, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary object wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा अभी हमने वो एक देखा था, एक बॉल को स्टिक कर दिया था एक ऑब्जेक्ट के साथ, वैसा ही कुछ है. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक है आपका 1 kg का ऑब्जेक्ट है और एक है आपका स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मास आपको कितना दिया है 1 kg, तो 1 kg मैंने लिख दिया. मास ऑफ वुडन ब्लॉक हाउ मच इट इज गिवन टू यू 5 kg, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दिया गया है, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड. फिर स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, चूंकि वो स्टेशनरी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो वो भी यहाँ पे रख दी. फिर मास ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, क्यों हम कंबाइंड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमें इंपैक्ट लाना है. तो 1 + 5 = 6 kg जब उन्हें बांध दिया जाता है बाद में, ठीक है. तो ये जो चीज है ये आपको सेकेंड केस में यूज होगी. सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब बिफोर इम्पैक्ट कितना होगा m1u1 + m2u2. आपके पास दोनों चीजें, आपके पास m1 है, m2 है, u1 है और u2 है. तो वैल्यूज डाल दी. सो हाउ मच वी आर गेटिंग 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फिर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया v, क्योंकि दोनों को बांध दिया गया है. और तो सॉरी बांधा तो नहीं है, बट ये बताया गया कि दे आर मूविंग टुगेदर. तो साथ में अगर स्ट्रेट लाइन के वो मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी. समझ में आ रही बात. तो वेलोसिटी मैंने कंबाइंड वेलोसिटी उनकी क्या ले ली, v ले ली. तो आफ्टर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, एक तो दोनों साथ में है तो उनका कंबाइंड मास है 6 into v, दैट इज 6v. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो इनिशियल मोमेंटम हमारा 10 है, फाइनल 6v है, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया. सो वी आर गेटिंग v = 1.66 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी फाइंड कर लिया, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी 16th क्वेश्चन इज होमवर्क, इजी है, आप अपने आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 18th करते हैं. 17th जो है वो गिव रीजन है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 में दिया, हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 8 meter per second square. ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितने हाइट से जो है आपका डम्बल फेंका गया है, 80 सेंटीमीटर की हाइट से फेंका गया है. 80 सेंटीमीटर की हाइट से फेंका गया है तो 0.8 मीटर होगा, ठीक है. हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट रखनी है, तो स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया. अब दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्री फॉल.
आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा फ्री फॉल के लिए ये फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होता है, सॉरी ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज प्लस 2as, s इज द डिस्टेंस, तो उसको मैंने किस में एक्सप्रेस कर दिया, हाइट से एक्सप्रेस कर दिया, एंड a इज द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे since the object is falling towards the ground, so I have considered we are going to consider the acceleration due to gravity, so it has been denoted with this small g, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको दी है, हाउ मच यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू कंसिडर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो v स्क्वायर एज इट इज u, इनिशियली मैं उसको किसी भी चीज को आप देखिए ऊपर से जब नीचे फेंक रहे हैं तो आप उसको ऐसे पकड़े हुए हैं, जब पकड़े हुए हैं तो वो क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो देखिए यहाँ पे वो हो गई 0 प्लस 2 एज इट इज, जी आपको दिया है कितना लेना है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h इज 0.8, यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 16 इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, हमें कितना स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसकी परफेक्ट वैल्यू के लिए, तो 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी, बट यू नीड टू फाइंड द मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम अब आप देखिए आपके पास v है, आपके पास मास है m है, 10 kg का है वो, तो m इंटू वी करिए, यू विल फाइंड द मोमेंटम, वो मैंने यहाँ शो नहीं किया, यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ। नाउ the thing is you have to write all these numericals that we have discussed over here in your physics notebook properly, and if you are having any doubt related to examples or related to these exercise numerical, don't hesitate to ask me, okay, you can either ask me in the comment box or you can ask me personally. Thank you for watching, be safe and kya bolu, yes, keep learning, okay, bye bye, take care.